Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Hamza Ghafoor, SS Physics, Divisional Public School and College Sahiwal. Today our topic is excretory system, excretion and kidney and associate structure from chapter number 1 Science 8 class. Objective of the lesson. By the end of the lesson, student will be able to define the excretion, to explain the excretory system, to explain kidney and associate structure, and to elaborate internal structure of kidney. Previous knowledge. In previous lecture, we have already discussed about nervous system. What is a nervous system? An organ system in our body which carry message from one part of a body to another and coordinate body function. This system is called the nervous system. The human nervous system consists of central nervous system CNS. The central nervous system is composed of two things. First is brain and second is spinal cord. First is brain and second is spinal cord. Peripheral nervous system PNS. Peripheral nervous system consists of network of nerves which connect the central nervous system of to all parts of the body. Contents. Today we will discuss about excretion, excretory system, kidney and associate structure, and internal structure of kidney. Excretion. The removal of nitrogenous waste material from the body is called excretion. Removal, खारिज करना, निकालना, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, ऐसा वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसको हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना, निकालना, रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. As a result of breakdown of various food items and other chemical components of the body. Nitrogenous waste matter is produced which must be immediately removed from the body. When we break down various food, जैसे हम फूड इनटेक करते हैं और वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के बाद केमिकल कंपोजिशन होती है, केमिकल कंपोनेंट्स बनते हैं और उसके बाद बहुत सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, विच मस्ट, जिसको हमें फ़ौरन क्या करना पड़ता है, इमीडिएटली रिमूव. हमें उसे बॉडी के अंदर ज़्यादा देर रखेंगे तो वो भी डेंजरस है बॉडी के लिए, तो उसे हमें इमीडिएटली रिमूव करना पड़ता है और उस रिमूवल को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं. The waste product in the body also include the nitrogenous material and other salts. Waste product हमारी बॉडी में जो सी है उसमें नाइट्रोजिनस मटेरियल और अदर सॉल्ट, दूसरे सॉल्ट मौजूद हैं. Accumulation of waste materials in the body is dangerous and therefore must be removed from the body. अभी हम बात की कि जितनी देर ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में रहेगा उतना ही डेंजर है, उतना ही खतरा है, तो उसको हैज पॉसिबल हैज बॉडी जो सी है उसको अपनी बॉडी से, बॉडी जो सी है वो उसे रिमूव करती है फ्रॉम द बॉडी. द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Excretory system, the nitrogenous material, extra water and salts are removed by the excretory system. इससे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम से पहले हमने नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में नाइट्रोजनस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट जो है उसको अपनी बॉडी से रिमूव किया जाता है. इस सिस्टम में नाइट्रोजनस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है. सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर आल्सो रिमूव थ्रू स्किन ड्यूरिंग परस्पिरेशन. तो जैसे कुछ सॉल्ट जो है वो पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा होता है.
Human excretory system consists of one pair of kidney and associate structure. For example, two ureters, one urinary bladder and one urethra. Excretory system कॉन्सिस्ट करता है एक पेयर किडनी का, जिसको हम उर्दू में गुर्दे कहते हैं, और उसके साथ एसोसिएट जो स्ट्रक्चर है उसमें टू यूरिटर्स होते हैं, वन यूरिनरी ब्लैडर होता है, वन यूरिथ्रा होता है। और इसको आप नेक्स्ट स्लाइड्स में देख सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर को भी, यूरिथ्रा को भी और यूरिटर्स को भी। नेक्स्ट किडनी एंड एसोसिएट स्ट्रक्चर। ये जस्ट हमारी किडनी है, किडनी की शेप बिल्कुल इसी तरह की होती है, दैट इज़ द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। और किडनी का बेसिकली काम क्या है, वर्किंग क्या है, क्लीन ब्लड को क्लीन करना और रिमूवल केमिकल, और वो केमिकल्स, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव करना, ब्लड क्लीन करना और रिमूवल केमिकल्स को रिमूव करना। Kidney. Human body has two dark brown bean-shaped kidneys in the abdominal region. हमारी बॉडी में दो डार्क ब्राउन कलर जो सा किडनी का होगा, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किडनी, टू डार्क ब्राउन किडनीज एंड वन बीन शेप। उनकी शेप जो सी होगी वो बीन शेप, लाइक यू से दैट के लोबिया जो घरों में महसूस होता है उस तरह की शेप होगी। कलर जो सा उनका डार्क होगा इन द अब्डोमिनल रीजन। अब्डोमिनल रीजन हम कहते हैं चेस्ट से नीचे वाला जो पोर्शन, आपके पेट का जो पोर्शन है उसे। वन ऑन अदर साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम जो सा है ये बेसिकली हमारी रीढ़ की हड्डी है, और इसकी राइट और लेफ्ट आपका किडनी मौजूद होता है, एक राइट साइड पे होता है और एक लेफ्ट साइड पे होता है, जो आप ये नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं। ये किडनी हमारे पास, ये राइट किडनी, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट किडनी। दोबारा उसी स्लाइड पे आए। द राइट किडनी इज लिटरली लोअर देन द लेफ्ट वन। डायग्राम पे आए। ये राइट किडनी जो सी है थोड़ी सी नीचे है, किससे, लेफ्ट वन से। इसकी रीजन क्या है कि राइट किडनी के ऊपर लीवर होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी नीचे होती है। द आउटर सरफेस of the kidney is convex and while the inner surface is concave. आउटर सरफेस जोन सी होगी हमारे पास किडनी की, जस्ट लाइक कन्वेक्स, जैसा कन्वेक्स मिरर होता है बिल्कुल उसी तरह। और जो इनर जोन सी होगी दैट इज द कनकेव, जो के अंदर की तरफ होगी, इनर साइड पे। और जो बाहर की तरफ से उभरी हुई होगी वो हमारे पास क्या होगी, कन्वेक्स। जो अंदर की तरफ गई होगी, धंसी होगी, वो हमारे पास क्या होगी, कनकेव। ठीक है, ये बच्चों उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी आपकी किडनी की। नेक्स्ट, किडनी एसोसिएट स्ट्रक्चर, किडनी को हेल्प करने वाला स्ट्रक्चर। फर्स्ट, यूरेटर, a tube which arises from each kidney and enter the urinary bladder is called the ureter. ट्यूब एक ब्रीक ट्यूब होती है जो राइज निकलती है किससे, ईच किडनी से, हर किडनी से निकलेगी। ये देखें, ये जो हमारे पास येलो कलर की ट्यूब है ये हमारे पास क्या है, यूरिटर, किडनी से निकल रही है और ये किधर जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर में। अब किडनी का क्या काम, अब हमने पढ़ा कि किडनी का काम है कि ये ब्लड को क्या करेगी, क्लीन करेगी। जब ब्लड को क्लीन करेगी तो उस टाइम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठी होंगी वो इसी यूरिटर्स के थ्रू किधर जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये किडनी स्टोन से हैं, ये बेसिकली आपके ब्लड को साफ करेंगे और ये यहाँ से वो वेस्ट प्रोडक्ट को भेजेंगे किधर, यूरिनरी ब्लैडर में। इट्स ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये देखें, यहाँ से आपको पता चला ये यूरिन जोन सा है आपका, वो कौन तैयार करता है, किडनी, और वो उसे तैयार करके किधर भेजेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। सेकंड मेजर पार्ट, urinary bladder. It is a muscular sac which collect urine from both ureters.
मस्कुलर सैक मतलब एक खाली जगह होती है, सैक खाली जगह को कहेंगे, और मस्कुलर जो लचकदार हो, जस्ट लाइक आपका जो शॉपिंग बैग होता है और उसमें देखेंगे उसमें लचक होती है, उसमें अगर हम पानी डालें तो बिल्कुल उस तरह की शेप होगी, तो थैली टाइप की। विच कलेक्ट द यूरिन, जो यूरिन को कलेक्ट करेगी फ्रॉम यूरिटर्स, कहाँ से कलेक्ट करेगी? यूरिटर्स। अब ये देखें, ये है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, इसकी शेप आप देख सकते हैं, इसमें सैक बहुत कैपेसिटी होती है और लचक होती है थोड़ी सी, यहाँ से सारा जो सा यूरिन है वो इकट्ठा होकर इसके अंदर आएगा और उसके बाद वो हमारी बॉडी से रिलीज होगा थ्रू यूरिथ्रा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? यूरिथ्रा, अ फाइन ट्यूब through which urine is released from urinary bladder to the outside is called urethra। तो यूरिथ्रा हमारे पास उस वेस्ट मटेरियल को जो कि यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ था हमारी बॉडी से रिलीज करेगा। क्लियर जी? तो ये तीन पार्ट्स हैं इसके एसोसिएट स्ट्रक्चर के, फर्स्ट यूरिटर, सेकंड इज यूरिनरी ब्लैडर, थर्ड इज यूरिथ्रा। Next, internally each kidney is divided into the three regions. First, renal cortex, second, renal medulla, and third, renal pelvis. First, renal cortex. It is the outermost region. ये देखें, ये जो outermost region है, that is called renal cortex. Second, renal medulla. It is the middle region which is divided into the conical masses called the renal pyramids. ये देखें, ये जो सेंटर वाले पार्ट्स हैं, दैट वन, ये हमारे पास सारे क्या है? रीनल मेडुला। अब इसमें रीनल मेडुला, इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर हमारे पास रीनल पैरामिड्स मौजूद हैं, जिनकी शेप जो सी होती है वो कॉनिकल शेप होती है, शेप जस्ट लाइक कॉन। अगर हम देखें तो इनकी शेप जो सी है वो कॉनिकल है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये 7 होते हैं, रीनल पैरामिड्स जोन से है, ये हमारे पास 7 होंगे। तो इनकी शेप हमारे पास किस तरह होगी? कॉनिकल। और ये जो किडनी का सेंटर वाला पार्ट है। लास्ट पार्ट है रीनल पेल्विस। इट इज द इनर एरिया वेयर द यूरिन इज ड्रेन। द यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस मूव इनटू द यूरेटर। ये देखें, ये हमारे पास है रीनल पेल्विस, और यहाँ से जितना भी यूरिन प्रिपेयर होता है, तैयार होता है, वो इन वेन्स के थ्रू बाहर की तरफ जाता है, ड्रेन निकलता है बाहर की तरफ, और वहां से यूरिथ्रा में जाएगा और ऐसा ऐसा हमारी बॉडी से वो रिलीज हो जाएगा। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको कुछ समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट फिर भी क्लियर नहीं है तो उसके लिए हम अपने लेसन को रिकैप करते हैं, रिकैप्चुलेशन ऑफ द लेसन। फर्स्ट पॉइंट, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये हमने पढ़ा, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? कि नाइट्रोजिनस मटेरियल को अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना, निकालना। सेकंड जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, नाइट्रोजिनस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स रिमूव बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जिस सिस्टम में ये चीज़ें रिमूव होती हैं बॉडी से, क्या क्या? नाइट्रोजिनस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स, इस सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। थर्ड मेजर पॉइंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ह्यूमन excretory system consists of one pair of kidney. Human excretory system consists of one pair of kidney. One pair मतलब 2 kidneys and associate structure, और उसके साथ इसका कुछ associate structure है जिसमें क्या है? 2 ureters हैं, 1 urinary bladder और 1 urethra। ठीक है, ये पूरा जोन सा है किडनी का हमारे पास स्ट्रक्चर, और उसके साथ उसके associate parts हैं। Internally, each kidney is divided into the 3 region। किडनी को हम 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स, सेकंड रीनल मेडुला, और थर्ड हमारे पास रीनल पेल्विस। तो ये एक छोटा सा रिकैप था जिसको आपको पता चल जाएगा जो जो आज हमने पढ़ा। आई होप सो कि कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करे। बड़ी सिंपल सा लेसन था हमारा। ये असाइनमेंट है
और असाइनमेंट में कुछ एमसीक्यूज मैंने दिए हैं। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहेंगे, एक्सक्रिएशन कहेंगे, वेपोरेशन कहेंगे, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों ने खुद चूज करना है। सेकंड है सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर आल्सो रिमूव थ्रू द स्किन ड्यूरिंग परस्पिरेशन, ब्लड, ब्रीथिंग, नन। इनमें से कौन सा आंसर आएगा वो भी चूज करें। बिल्कुल सिंपल सा है, रिमूवल, सॉल्ट और इसमें स्किन। स्किन से आपको पता ही है, हिंट है आपके लिए। थर्ड पार्ट है हमारे पास द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज, वो क्या होगी हमारे पास? फर्स्ट कनकेव होगी, मस्कुलर होगी, थर्ड है कॉन्वेक्स, और फोर्थ है हमारे पास नन ऑफ दीज। Fourth, a tube which arises from each kidney and enter the urinary bladder is called ureters, bladder, glands, यूरेथ्रा। पहले यूरेथ्रा था, ये यूरेटर। इसमें से आपने करेक्ट आंसर चूज करना है, सिंपल है, इसमें हिंट भी है आपके पास, यूरिनरी ब्लैडर। फिफ्थ है हमारे पास एमसीक्यू आपके लिए, द इनर एरिया where the urine is drained is called renal cortex, renal medulla, renal pelvis and none। ये आपने बताना है। और सिक्स, the part of a body which filter nitrogenous waste from blood, first a liver, b kidney, third intestine और फोर हमारे पास स्टमक। तो इसमें ये एक मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा आसान है, ये मैं आपको बता देता हूँ, किडनी। अच्छा जी बच्चों, आपका जो होमवर्क है तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्सक्रीशन, शुरू में डेफिनेशन दी हुई है, और व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन आपकी स्लाइड्स में मौजूद है। और स्किन इज आल्सो कंसीडर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, वाई, इसकी रीजन जो सी है वो आपने बतानी है। और जो चीज़ ना समझ आए वो आप अपनी क्लास में अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, दो लॉन्ग क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास। डिस्क्राइब द मेन पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी के जोन से वो आपने डिस्कस करने हैं। और उसके बाद राइट डाउन द नोट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। इन दोनों के आंसर आपके स्लाइड में मौजूद है। तो आई होप सो आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।